x cube minus 6x square plus 9x minus 10. And we have to find critical points. So how to find critical points? We have to take first derivative, then we will equate that to 0, and the values of x we will get is called critical points. Okay, so we have to find f dash of x. So f dash of x will be 3x square minus 12x plus 9. Further, we can factorize f dash of x. We have to take 3 common from this. It will become my x square minus 4x plus 3. Further, we will split the middle term, and minus 4, we have to split minus 4 into minus 3 minus 1. Okay, so further we can make pairs and take x common from first pair. We will get x minus 3. From the second pair we can take minus 1 common and it will become x minus 3. Further, x minus 3 can be taken common from this complete expression. So x minus 3, x minus 1. So this is what f dash of x after factorization. Till this part it is clear? Yes, sir. And further we have to equate the derivative to 0. And 3 times of x minus 3, x minus 1 is equal to 0. And further we will get two values of x, that is 3 and 1. So these two values of x are called critical points. That's it. Okay. Sir, I have taken 3 directly on the RHS. So my f dash x, can I consider it as x minus 3 and x minus 1 only? Yes, that is also fine. And Yes. sir, if we have to show it on the number line, can you please show that once? No, actually, to this, these value need not to be shown in number line as per the question, because in the Yes. question it is given that we have to only find critical points. So the Yes, critical sir. points are in 1 and 3. We don't need to show in number line. Okay. Sir, actually, while practicing on this number line, I was getting the intervals as positive, negative, and negative. Like it was negative for this positive value also. Can you please show that on number line once? Okay, no problem. So if we have to find the interval on which the function is increasing or decreasing, so we have to show this in number line like this. So 1, 3, and the intervals will become minus infinity to 1, 1 to 3, and third interval will be 3 to infinity. Okay. Now we will consider any value from first interval, that is minus infinity to 1. Let us consider 0. So put 0 in this first derivative. What we will get? Negative, negative, that is positive. So for this interval, f dash of x is positive. Hence we can conclude that in this interval function is increasing. Okay. And from the next interval, consider any value in between 1 to 3. Let us consider 2. So 2, if we put x is equal to 2, we'll get negative value of f dash of x. So here f dash of x is negative. Hence the function is decreasing on this interval. Okay. And for the third interval, consider any value between 3 to infinity. Let us consider 5. So again, the derivative is positive. So function is increasing on this interval. So the function is increasing on interval minus infinity comma 1 union 3 comma infinity. F of x is increasing on this interval. Okay. And f of x is decreasing on interval 1 to 3. Shev, is it clear or any doubts? Yes, sir. Now understood. Okay. And sir, in the book, like they have used small brackets also and big brackets also. So can you please explain how we have to present our answer? Look, actually the correct way for this type of solution is you should always take small brackets only, because here 1 is not included, 3 is also not included, because at 1 the derivative is 0. So at point x is equal to 1, the function is neither increasing nor decreasing. If the derivative is positive, then function is increasing. If it is negative, then it is decreasing. But at x is equal to 1, the derivative is 0. So it is neutral, neither increasing nor decreasing. So you should always practice to use small brackets, because it is called open interval. It's
it represents that these values are not included in this interval. Okay. So that means we will not even take it as negative infinity to 1, union 1 comma 3, union 3 comma infinite. Like Yes. we will not include 1 comma 3 also. Actually, 1 comma 3 is for decreasing interval, but what I want to tell you is that minus infinity to 1 and minus infinity to 1, these two representations are possible. Okay, this representation is when 1 is not included, this representation is when 1 is included. So you should use always this type of representation, because 1 is not included in both the cases, neither in the increasing interval nor in the decreasing interval. Okay, क्लियर हुआ डाउट या अभी भी कुछ है शैवी? Yes, sir, understood now. Okay. Okay. Any other question from what I have shared? So all these questions are from that book by NCERT. So you can practice these questions also. Okay. Okay, so I think we can start with maxima, minima, next topic. If any doubts from this increasing, decreasing, then you can ask, or any question is there. Otherwise, we can move with the next topic, maxima, minima. और कुछ क्वेश्चंस हैं क्या इस एक्सरसाइज से? एमएल अग्रवाल या एनसीईआरटी, दोनों में से चेक कर लो. बट मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यही वाले होंगे जो मैंने अभी तक क्लास में करवाए थे, लास्ट क्लासेस में. ओके. Okay, maxima and minima. Actually, in application of derivative, this particular application to determine maxima and minima is the most important application. और अगर क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, तो इसी टॉपिक से आने के चांसेस 99%, 95 to 99% है. सो इस टॉपिक को सबसे अच्छे से समझना, ठीक है. एंड द टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा डिपेंड्स ऑन द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन लाइक दिस. हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, और ये फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस है, और यहां पर ये हो गया वाई एक्सिस. वाई एक्सिस जो है उसमें एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट हो रहा है. ओके, नाउ आई एम हाईलाइटिंग सम ऑफ द पॉइंट्स लाइक दिस. लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी, दिस पॉइंट एज सी, and this point as D, and this point as E, like this. Okay, and let us consider this point as x1 and this point as x2. Okay, so यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो पूरा फंक्शन का ग्राफ है वो कौन से इंटरवल्स में डिफाइन है? जस्ट अ सेकेंड. सो पूरे फंक्शन का ग्राफ कौन से इंटरवल्स में डिफाइन है? x1 to x2. क्लियर? ओके. मैक्सिमा मिनिमा, शैवी मैक्सिमा मिनिमा एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये पूरा ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एफ ऑफ एक्स का. यहां पर ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ए, बी, सी, डी, एंड दिस पॉइंट इज सपोज ई. ये जितने भी पॉइंट्स है, they all are critical points. Why they are critical points? Because if we draw tangent at this particular point, then that tangent will be parallel to x-axis. Okay, it means the slope of tangent is 0. When any line is parallel to x-axis, its slope is 0. And how we can find the slope? The slope of any function is given by f dash of x. So f dash of x at this particular point is 0. Clear? Similarly, f dash of x at this particular point is also 0. F dash of x at this particular point is also 0. At this point, at all these points, f dash of x is equal to 0. So this is what critical point. और हम ऐसा ही find out करते थे. f dash of x को 0 करते थे, x की different values मिलती थी. Clear? And then we divide the complete interval in some sub intervals. Like first interval is
x1 to a in this case. The second interval is from a to b. The third interval is from b to c. Fourth interval is c to d. Fifth is d to e, and so on. Clear? ये पूरे intervals हो गए. Now in the first interval, tell me whether function is increasing or decreasing. In the first interval, this interval x1 to a, the function is increasing. It means f dash of x is positive in this interval since the function is increasing. Now in the second interval a to b, function is increasing or decreasing? It is decreasing. As you can see, it is falling. So f dash of x is negative in second interval. Clear? So at this particular point, at this critical point a, before which the f dash of x was positive and after which the f dash of x was negative. So this point is called point of maxima, because इस पॉइंट के पहले फंक्शन राइज कर रहा था और इस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या है, फॉल कर रहा है. तो ये जो पॉइंट है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली, उसके बाद फंक्शन फॉल करना स्टार्ट हो गया. क्लियर हुआ ये चीज? सो if the sign of f dash of x changes from positive to negative when we are passing through a particular point a, then that particular point a is called point of maxima. Is it clear? Yes, online wale students acknowledge karo. Yes, sir, understood. Okay. Yes, sir. Similarly, now let us consider when we are passing through this point b. So for interval a to b, f dash of x is negative, but for interval b to c, f dash of x is again positive because function is rising. So when we are passing through this point b, the sign of f dash of x is changing from negative to positive. So whenever the sign of f dash of x is changing from negative to positive, then that point is called point of minima. Clear? So here point A is point of maxima. Just note this point, that it is point of maxima. At this point we are getting maximum value. A is not maximum value. A is the point where we will get maximum value. Clear? So it is point of maxima. Similarly, B is point of minima. Point of minima. Similarly, C will be point of what? Maxima or minima? Point of maxima. D will be point of minima. E will be point of maxima. Clear? So how many maxima we are getting, or how many points we are getting as maxima? Point A, point C, and point E. Here we have three different points where we are getting maximas. Clear? So these are called local maxima, because at this point it is also maxima, this point is also maxima, this point is also maxima. So ये सारे individually क्या बोले जाते हैं? Local maxima. Clear? But out of these three maximas, which one is highest? This point is highest, I think. So this point is called absolute maxima or global maxima. Clear? आउट ऑफ जितने भी मैक्सिमा है उसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है? पॉइंट सी पे आ रहा है, तो ग्लोबल मैक्सिमम. क्या ये चीज क्लियर हुई? शैबी, नैना, यस, एक्नॉलेज करो. Yes, sir. Okay, so if we want to conclude this, let us make some note points from this. Sign of f dash of x changes from positive to negative, positive to negative, as we are passing through point A. Hence, x is equal to A is a point of local maxima. Hence, x is equal to A is a point of local maxima. And f of A is
the local maximum value. Local maximum value. सर हाँ हाँ बोलो, है ना? सर इंटरवल्स इंक्लूडेड नहीं है ना? क्या चीज? इंटरवल्स इंक्लूडेड नहीं है ना? हाँ, ये इंक्लूडेड नहीं है, हमने ए को इंक्लूड नहीं किया है. ओके. यस हाँ, सर. सो एफ ऑफ ए पे एफ ऑफ ए जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर ये चीज सबको? सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? पॉइंट बी. सो साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स changes from negative to positive as we are passing through point B. So B is the point of local minima, and minimum value will be f of B. Clear? सो ओवरऑल कंक्लूजन आपका क्या है, स्टेप्स क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहले आप क्या करोगे? कोई भी फंक्शंस गिवन है तो आप ये क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करोगे, सिमिलरली व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस पार्ट. फिर क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हमको इंटरवल्स मिलेंगे. फिर हम चेक करेंगे कि इंटरवल्स में अगर चेंज हो रहा है, मतलब हम पॉइंट ए से मूव कर रहे हैं, तो साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है. अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमा मिलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो मिनिमा मिलेगा. क्लियर? हेलो? Yes, sir. ओके. ओके, सो स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना. एक्चुअली दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज कॉल्ड एज फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड. इसमें हेडिंग डाल लेना, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा. ओके. अच्छा, एक और नोट पॉइंट मैं इसमें आपको बता दूं. यहां पर ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले ना, ए बी सी डी ई, इनको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोला जाता है. एक्सट्रीम पॉइंट्स क्यों? क्योंकि इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेगी, या तो पॉजिटिव मिलेगी या फिर नेगेटिव मिलेगी. ठीक है, मतलब या तो उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलेगा या फिर उस पॉइंट पे क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा. सो इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस. सो अपने बुक में आप लोग ओपन करना, एमएल अग्रवाल की बुक से ही बता रहा हूं मैं. देखो, इसमें ये सारी चीजें अगर आप अपनी बुक रेफर कर रहे हो ना, सामने अगर बुक है तो देखना, बुक में पेज नंबर 294 ओपन करना. 294 ओपन किया सबने? इसमें 294 में फिगर 6.23 आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? 6.23 टॉप में. उसमें देखो, वहां पर वो लोकल मैक्सिमा के 2-3 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे. ठीक है, जहां जहां पर वो साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लोकल मैक्सिमा है. ठीक है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा देखो किसको मार्क किया उसने? जो सबसे ऊपर पॉइंट है वो क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा. क्लियर? सिमिलरली लोकल मिनिमा, ये सारी चीजें भी आपको दिख रही है. तो जो अभी मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन किया, सेम टाइप की चीज है. ओके, अब हम क्वेश्चंस करते हैं. एक्सरसाइज पेज नंबर कौन सा है? हाँ, पेज नंबर 297 पे है एक्सरसाइज ना. 297 एक्सरसाइज 6.5. ओके, 297 एक्सरसाइज 6.5. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? फाइंड द मैक्सिमम
and minimum values if any. इफ एनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करे। क्लियर? अब मैं इस कंसेप्ट को बताता हूं, समझो इधर। अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है, इधर ध्यान से समझना, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट, कभी एंड नहीं हो रहा ना फंक्शन, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करे। मिनिमम वैल्यू क्या है, यहां पर आएगी। सपोज ये वैल्यू क्या है, 5, -5, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -5। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है, बट मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, जो कि क्या है, -5 है। सिमिलरली अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइन है, बट मैक्सिमम वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट करेगी। क्लियर ये चीज? लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो उसमें दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमा भी और मिनिमा भी। तो डिपेंड करेगा फंक्शन टू। बिल्कुल ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जिसमें दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, और उसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर आप लोग सोच रहे हो तो एक बार मैं ड्रॉ करके बता दूं। अगर मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, तो देखो नीचे -इन्फिनिटी हो गया मिनिमा, ऊपर +इन्फिनिटी हो गया मैक्सिमा, सो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? ओके, सो मैंने ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी। तो इफ एनी का रीजन ये है, हो सकता है नहीं भी एग्जिस्ट करे। फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू दिस। तो स्टेप्स क्या था, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, जैसे पहले करते थे। f डैश ऑफ x निकालना पड़ता है, उसके लिए f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x। देन put f dash of x is equal to 0, so 2x is equal to 0, you'll get x is equal to 0. Okay, ये हो गया critical point. Now this critical point will be called as extreme point, because in this point either you'll get maxima or you'll get minima. Okay, now draw a number line from -infinity to infinity. Mark this point, critical point 0. Find the intervals. The intervals will be -infinity to 0 and 0 to infinity. Okay. Now check the sign of f dash of x for the first interval, -infinity to 0. Check the sign of f dash of x for this interval. So consider any value from this interval. Let us consider -5. -5, f dash of x will be negative. So for this point, f dash of x is negative. For this interval, f dash of x is negative. Now consider any value from second interval 0 to infinity. Let us consider 5. So f dash of x will be positive. So for second interval, f dash of x is positive. Now check the sign of f dash of x when we are passing through the point 0. When we are passing through the point 0, the sign of f dash of x is changing from negative to positive. So just recall this note point. When the sign is changing from negative to positive, that point is called point of minima. So here the point of minima is what? 0. Clear? So here x is equal to 0 is point of minima. Yes, मैक्सिमा में पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता है, ठीक है। सो यहां पर एक ही साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो वी विल गेट ओनली पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैक्सिमा विल नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस कंडीशन। ओके, सो x is equal to 0 is point of minima. Now the minimum value of f of x will be f of 0. Okay, so नहीं लिख दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर So एक can we have more than one point for point of minima? yes, definitely we can have more than one point as point of minima. So that point will be called as local minima. Okay, like in this case we are getting b d more than one points as minima, so they are called the point of local minima. Here we are getting only one minima. Okay, now the minimum value of f of x will be f of 0. Now put x is equal to 0 in this function. यहां पर ध्यान देना, f of x पे पुट करना है ना,
So 0 put करेंगे 0 square that is equal to 0. So the minimum value of this function is 0. Clear? Yes, sir. हाँ कर लिया. Okay. So मैं इसको हटा रहा हूं. Actually ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है बुक में शायद मैंने अभी पूरा देखा नहीं आप लोगों के बुक में, बट मैक्सिमा और मिनिमा आइडेंटिफाई करने की जो अप्रोच है वो एक अप्रोच मैंने ये बताई, डेरिवेटिव बेस्ड अप्रोच. एक और है बिना डेरिवेटिव के भी हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते. वो कैसे कर सकते बता रहा हूं मैं आप लोगों को. देखो उसका सिंपल सा मेथड ये है कि यार उसको नहीं बताता, हटाओ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. डिफरेंशिएशन वाले ही है, नहीं दिया ना वाला, क्योंकि कुछ जगह पे दिया है मुझे ऐसा याद है कोर की बुक में गिवन है. ठीक है छोड़ दो हटाओ, हम डिफरेंशिएशन वाले मेथड सही करते हैं. ठीक है सेकंड क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं. होगा बिना उसके भी, बिना डेरिवेटिव के भी है, बट वो एग्जाम में आता नहीं है इसलिए मैं नहीं बताता. ठीक है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे. सेकंड क्वेश्चन चेक करो क्या गिवन है सेकंड वाला इसका. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x minus 1 whole square plus 3. So step number 1 क्या करना है हमको, f dash of x डिफरेंशिएट करना है. f dash of x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 times of 2x minus 1 into 2 chain rule. Okay, 2x minus 1 whole square it will be 2 times of 2x minus 1, फिर 2x minus 1 का डेरिवेटिव ये आएगा. So f dash of x will be 4 times of 2x minus 1. Okay, यहां तक क्लियर ना सबको. Now put f dash of x is equal to 0. So 4 times of 2x minus 1 is equal to 0. So 2x minus 1 is equal to 0. So you'll get x is equal to 1 by 2. ये मिल गया critical point, extreme point. Okay. Now draw the number line and identify the intervals. So the intervals will be minus infinity to half, first interval. And second interval will be half to infinity. Now check the sign of f dash of x for the first interval. So consider any value from first interval. Let us consider 0. So when we consider 0, the sign of f dash of x will be what? 0 put करो x के place पे तो क्या आएगा, negative आएगा ना. So for the first interval f dash of x is negative. And for the second interval, consider any value from this, you will get positive value. So here, this point 1 x is equal to 1 by 2 is point of, क्या है, point of minima. Yes, point of minima. And what about minimum value of function? Yes. Sir, how you have solved for minus infinity to 1 by 2? Please explain once again. For minus. For finding out negative and positive sign. Okay, so for first interval minus infinity to 1 by 2, I have considered 0. That belongs to this interval. Okay. Yes, sir. So when we put 0 in f dash of x, it will be 0 minus 1. That is negative. So f dash but of. if we consider 1, so it will be 2 minus 1, which But will be 1 doesn't belong to this interval. 1 belong to the next interval. We have taken half. Yes, sir. Okay, so if you are considering 1, then we get positive value. So that's why second interval we are getting positive value of f dash. Okay, minimum value of function, it will be f of 1 by 2. So just put 1 by 2 here. 1 by 2 यहाँ पर put करना है. So you'll get 2 into 1 by 2 minus 1 whole square plus 3. So ये 2 और 2 cancel out हो जाएगा. So you'll get 1 minus 1 whole square plus 3. So that is 0. So the answer is 3. So the minimum value of function is 3. Okay? Clear? Naina, Chevy? Yes, sir. Now solve the next question.
क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, यस। मैं सॉल्व नहीं सर कर रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू, हाँ बोलो। मैक्सिमम वैल्यू इसकी। मैक्सिमम नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि इसमें बस एक ही एक्सट्रीम पॉइंट मिला है नैना। मतलब अगर एक ही एक्सट्रीम पॉइंट है ना, तो आपको या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा। तो ये सिर्फ मिनिमा वाला पॉइंट है, मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये कंसीडर होगा। ओके। ओके सर। हाँ देखो, इसलिए आंसर्स में भी वैसा मेंशन्ड है, अगर आप देख रहे होगे तो मिनिमम वैल्यू उसने पहले में 0 ली थी, सेकंड का आंसर देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, ये 3, और नो मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज मैक्सिमा विल नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस केस। सेकेंड पार्ट में मैक्सिमा आ रहा है, कौन से पॉइंट पे आ रहा है? x इज इक्वल टू 1 पे। हम्म। नैना और शैवी, तुम दोनों का बन रहा है सेकेंड का फर्स्ट पार्ट? सर बना रही हूँ। Yes, yes, it's solving. ओके। मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है, यस करेक्ट। नेक्स्ट सॉल्व करते चलो फिर। हाँ कल रेगुलर टाइम पे ही है। शैवी एंड नैना, सेकंड का फर्स्ट बन गया क्या? यस सर। Sir, x's value that we are getting after equating it with 0, it will be -6, no? फॉर द फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट में बोल रहे हो क्या? Yes, sir. नहीं, No, आई थिंक वी आर yes, गेटिंग sir, that. 1, x इज इक्वल टू 1। सेकंड के फर्स्ट में क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू 1। शैवी, इज इट ओके? Yes, sir, let me check once. Okay. If any doubt, you can show me your notebook also. सर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट आएगा ना। यस, पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांजिशन है तो मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। तो x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। ओके। यस। Sir, I think I'm getting incorrect answer. इनकरेक्ट आंसर?
x इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या शैवी? बताऊंगा उसको, उसको छोड़ के मॉड वाले So क्वेश्चन I think I understood. I have taken 10 in the derivative. I should consider that as 0. Yes, the derivative of 10 is 0. So f of x is equal to minus of x minus 1 whole square plus Yes, 10. now it will be 1. Got it. Yes, now you are getting 1. Now you Yes, have to sir. find interval and then you have to check the change of sign, positive to negative, negative to positive. सेकंड का सेकंड नहीं बना तुमसे, मैं एक बार बता दे रहा हूं। सेकंड का सेकंड फंक्शन क्या है बताना। सेकंड, हाँ, सेकंड का सेकंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 है, 9x स्क्वायर है ना क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तुम्हारा भी गलत आ रहा है कृष्णा। सो f dash of x फाइंड करोगे, सो इट विल बी 18x प्लस 12। ओके, नाउ put f dash of x is equal to 0, so it will be 18x plus 12 is equal to 0. Further, it will be x is equal to minus 12 by 18, that is equal to x is equal to minus 2 by 3. So x is equal to minus 2 by 3 आया। फिर उसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, infinity, this is plus infinity, this point is minus 2 by 3. So the first interval is minus infinity to minus 2 by 3. Second interval is minus 2 by 3 to infinity. Now consider any value from this interval. क्या कौन सी वैल्यू लिया और इसमें पुट करना है ना। हाँ, तो -1 ठीक है, -1 लोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आया, और फिर उसके बाद इसमें से ले लो, 0 ले लो, 0 लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, it means this point is point of minima, point of minima, and minimum value will be, minimum value will be f of minus 2 by 3. So f of minus 2 by 3 तो फंक्शन में पुट करना है ना, एक्चुअल फंक्शन। So it will be 9 into minus 2 by 3 whole square plus 12 into minus 2 by 3 plus 2. So further it will be 9 into 4 by 9. Okay, 3 ones are 3 fours are plus 4 into minus 2 plus 2. So 9 और 9 कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा 4 minus 8 plus 2. Yes, minus 2. So minus 2 ये मिनिमम वैल्यू होगी, दैट्स इट। ठीक तो है। सर मॉड वाला कैसे करना है? कौन सा? क्वेश्चन 3 फर्स्ट। अच्छा, मॉडुलस वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैं And sir, in this question number 2, first part only the interval will be positive and negative, no? Like negative infinite to plus 1, it will be positive. Yes, you are and getting 1 to infinite. x is equal to 1, so the interval will be minus infinite to 1 and 1 to infinite. So these two intervals will be there. Okay, so the first, for the first interval the sign is what, positive or negative? It is positive, I think. Positive. Yes, for the second interval it is negative. Okay, so you are getting x is Yes, sir. equal to 1 as point So of later part I have done. I wanted to confirm this number line. Okay, 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 ठीक है। So सर you, दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं? क्या चीज? दोनों पॉजिटिव? दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। और उस केस में अगर मान लो साइन चेंज नहीं हो रहा है, ये डाउट है ना, अगर मान लो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, सो दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इट विल बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट। यस सर। थर्ड के सेकंड में आ रहा है क्या? ओके, नहीं वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा, ओके। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना, मॉडुलस वाला। देखो,
इस क्वेश्चन को, इसका जो मॉडुलस वाला है मैं समझा देता हूँ, समझ लेना, लेकिन उसको सॉल्व करने मत जाओ, ठीक है? बिकॉज मुझे नहीं लगता वो क्वेश्चन आने लायक है, बट सिर्फ समझ लो आया है क्या मैक्सिमम। ठीक है, तो फिर आप सॉल्व कर लो। ओके, तो सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, सो लास्ट कल की क्लास में मैंने मॉड एक्स का बाइफर्गेशन बताया था। मॉड एक्स कैसे डिफाइन होता है? इट इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ओके, फिर एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स विल बी x का डेरिवेटिव 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज -1 व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद सिंपली यहीं पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ये हो गया नंबर लाइन। इंटरवल इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ओके, नाउ द क्रिटिकल पॉइंट इज 0 बिकॉज बिफोर 0 एंड आफ्टर 0 द वैल्यूज आर चेंजिंग। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। Now for the first interval that is from minus infinity to 0, for this interval f dash of x is negative। यहाँ लिखा है ना x less than 0 मतलब 0 के पहले, मतलब ये वाला इंटरवल में f dash of x क्या है? नेगेटिव। Now for this interval 0 to infinity f dash of x is what? Positive। So the sign of f dash of x is changing from negative to positive। नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा है ना। सो हियर पॉइंट 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, सो x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। So like you have directly written 1 and -1 for f dash of x. So how have we determined the negative and positive sign here? Simply look, for this condition it is given that x is greater than 0, so here point 0 is there, so greater than 0 means this interval greater than 0. So for greater than 0 f dash of x is 1, it is actually +1, so sign is positive. Now for this interval when x is less than 0, it means this interval, for this interval f dash of x is -1, so the sign of f dash of x is negative। Yes. हाँ हाँ, f dash of x की, हाँ नहीं, एक्चुअली f डैश ऑफ 0 वो डिफाइन नहीं होता है, वो बस मैंने समझाने के लिए वैसा लिख दिया है। ठीक है, आपको साइन चेक करना है, 0 पे डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये समझ लो। ठीक है, आपको सिर्फ साइन देखना है कि ग्रेटर देन 0 वाले पॉइंट को तो कंसीडर ही नहीं करना है, 0 के पहले और 0 के बाद वाले दो वैल्यूज पे चेक करना है। ठीक है, अब इसमें फंक्शन की पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स पे 0 पुट करेंगे, सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू मॉड 0, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? उसमें यही स्टेप्स लिखोगे जो मैंने लिखा ना, बस आप एक चीज हटा देना, ये वाला चीज। ठीक है, इसमें इक्वल्स टू ग्रेटर देन बस कर देना। क्लियर? ओके, वैसे मैं जानता हूं ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर ये अगर आ भी गया ना तो 1 मार्क के लिए आएगा। उसका रीजन मैं बताता हूं, देखो यहां पर लास्ट क्लास में मैंने एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ आपको बताया था ना। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? रिकॉल करो, वी शेप में बनता है, वी शेप में। यू गेट? ठीक है, अब देखो यहां पर आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? 0। दैट्स इट, ये देख के ही क्लियर हो जाता है। समझ में आई ये चीज? ओके, ये 1 मार्क्स में आ सकता है भले ही, बट सॉल्यूशन बेस्ड पे नहीं आएगा। ओके, नहीं 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 करनी पड़ती। हाँ, बोर्ड में नहीं करना पड़ता, क्योंकि बोर्ड में 1 वर्ड आंसर रहेगा 1 मार्क में, या एमसीक्यू रहेगा, या फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, या ट्रू फॉल्स रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस 1 मार्क वाले, वो ऐसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इधर पे ना इसके इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसको छोड़ दो अभी। मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट
रिपीटेड दे रहा हूं उन क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस कर। आएगा ना, अभी सब करवाऊंगा, अभी रुक जाओ उसको। अभी मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको पहले ट्राई करो, ठीक है। सो क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लिखो आप, ये लिख लो, एक काम करो, फाइंड द लोकल मैक्सिमा कॉमा लोकल मिनिमा and local maximum value comma local minimum value। ठीक है, जहां पर भी ये वैल्यू वर्ड आ जाता है ना, तो इसका मतलब क्या, हाँ, एफ ऑफ एक्स निकालना है उस पॉइंट पे। और लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोल रहा है ना, मतलब ये वो पॉइंट की बात कर रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा है जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहा हूं जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। सेकेंड इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x upon x when x is greater than 0. Third is f of x is equal to 1 minus x square e raised to power x. Fourth is f of x is equal to x square minus 7x plus 6. Fifth is f of x is equal to 2x plus 1 upon 2x. Okay. Now solve these. For the first, f of x is equal to x square minus 6x plus 16. I think ये सॉल्व कर लोगे, चलो ट्राई करो। एफ डैश ऑफ एक्स निकाला ना, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 2x माइनस 6। ठीक है, फर्दर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे, सो you'll get 2x minus 6 is equal to 0, you'll get x is equal to 3। x is equal to 3 आ गया। नैना शेवी सॉल्व कर रहे हो? Yes, sir. यस सर, मिनिमा आ रहा है इसमें। ओके, चेक करते हैं। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, नाउ द क्रिटिकल पॉइंट इज 3, so the intervals are minus infinity to 3 and 3 to infinity. Now for the first interval, consider any value and put in f dash of x. So let us consider 0. So here f dash of x is negative, and for the next interval it is positive. So x is equal to 3 is local minima and minimum value is f of 3, that is equal to what, 3 square minus 6 into 3 plus 16 कितना आ रहा है, 9 minus 18 plus 16, that is equal to 7। minus 18 plus 16 minus 2 plus 9 7। ठीक है, हो गया सबका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर स्टार्ट।
ये हटा दूं, हो गया ना नैना शेवी? यस सर। Now for the second part, f of x is equal to log x upon x. Same process, first derivative find out करो, लगेगा ना? f dash of x will be what? Quotient rule apply होगा. So सबसे पहले denominator square, denominator derivative of numerator, so it will be 1 upon x minus numerator, that is log x, derivative of denominator, that is 1. Clear? So f dash of x is equal to 1 minus log x upon x square. Okay? Okay. अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझना. प्रीवियस क्लास में भी इस टाइप का प्रॉब्लम आया था जब डिनोमिनेटर में भी एक्स वाली टर्म आ रही थी. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी इक्वल टू 0 करेंगे और न्यूमरेटर को भी इक्वल टू 0 करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. ठीक है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0. ये एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा. और यहां पर इसको इक्वल टू 0 करेंगे, सो ये इधर जाएगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x. ओके. अच्छा, अब log की प्रॉपर्टी रिकॉल करो. 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log e. याद आया, मैंने लिखवाया था ये आप लोगों को. log e इज इक्वल टू क्या होता है, 1. तो 1 को रिप्लेस कर देंगे log e से और यहां पर ये क्या हो गया, log x. यहां तक क्लियर? सो गेट x इज इक्वल टू e. ये x की दूसरी वैल्यू मिल गई, x is equal to e. दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए. So that means we have to solve separately for denominator and numerator if we are getting our answer in such form. Yes, yes, yes. We have to take separately numerator and denominator if we are getting function of x in numerator and denominator in both the side part. Okay. Now check the condition which is given in question. What is given? That x should be greater than 0. Look at this condition. यहां पर ध्यान दो, x greater than 0 होना चाहिए. So we will not consider this value, x is equal to 0. We will consider only this value, x is equal to e. Okay. Now for the intervals. Now what about the intervals? When we draw the number line, the interval will start from 0. It will not start from minus infinity. Why? Because the domain is x greater than 0. So the interval start from 0 to infinity. Okay. From 0 to infinity. Now the critical point is e. E lies between 0 to infinity. The exact value is e is around 0 2 point something. मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ. e की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, नहीं याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बस बताने के लिए नहीं दी रहेगा. e की वैल्यू होती है 2.71. विदाउट वैल्यू भी हो जाएगा, जस्ट वेट करो, मैं बता रहा हूं यहां पर. ठीक है. एक्चुअली इसमें ना लॉग की टेबल, लॉग हट गया था क्या? अच्छा. चलो ठीक है, वो सब छोड़ो, ध्यान मत दो, मैं आपको इसको ऐसे ही समझा देता हूँ. सुनो, यहां पर ध्यान देना, log e की वैल्यू जो है, देखो log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. अच्छा, यहां तक समझ में आ गया ना? इसके बाद हम क्या करते हैं, f डैश ऑफ x का साइन चेक करते. तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर. यही है. अब देखो x की अगर कोई भी वैल्यू पुट करता हूं इस इंटरवल की, इस इंटरवल मतलब 0 टू e वाले इंटरवल की वैल्यू पुट करता हूं, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा. न्यूमरेटर में देखो क्या होता है, log e की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है. समझ रहे हो ना, log e की वैल्यू 1 होती है. तो इस केस में अगर e से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो वो 1 से छोटा नंबर आएगा. ठीक है, मतलब 1 से छोटा नंबर होगा, और 1 से छोटा नंबर होगा मतलब 1 माइनस लॉग क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मतलब इस इंटरवल में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. और जब आप सेकेंड इंटरवल की वैल्यू पुट करोगे e से लेके इंफिनिटी की,
सो उस केस में अगर x की वैल्यू e से ग्रेटर पुट करोगे तो ये जो log x की वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर आएगी, और 1 से ग्रेटर आएगी मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा मतलब f डैश ऑफ x इस इंटरवल में क्या होगा, नेगेटिव। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी, e पे मिलेगी। तो e हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या ये समझ में आया? सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना। ओके एक्चुअली इसमें लॉ की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत अप्लाई हो रही है, सुनो। मैं इसको एक बार शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। लॉग ई की वैल्यू जो होती है ना, लॉग ई इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, अगर यहां पर ये जो नंबर है ये ई से छोटा है, इट इज लेस देन ई। अगर ये नंबर जो ई से छोटा है, या फिर ई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है इज इक्वल टू 2.71, okay, approximately this. So if this value is less than 2.71, suppose this value is 1, हाँ ये 1 रखना सबसे बेस्ट है। देखो ये अच्छा अच्छा एग्जांपल मुझे मिल गया। देखो इधर ध्यान दो, अगर आपको ये पॉइंट की वैल्यू में डाउट हो रहा है ना, तो ये देखो 0 से e के बीच में एक पॉइंट 1 भी आएगा ना, 1 पुट करके देख लो f डैश ऑफ x में। 1 पुट करके देखोगे तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 0 हो गया तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 इट मींस पॉजिटिव। समझ में है ना? यस सर। ये चीज भी मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज जब बता रहा था, बताया था log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। सो इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। सो फॉर दिस इंटरवल द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। Now for the next interval e to infinity, if you take any value which is greater than e, like 100, so log 100 की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। For next interval it is negative. So here x is equal to is point of maxima. Okay, x is equal to is point of maxima. And what about maximum value? Maximum value will be what? f of e। f of e होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो f of e मतलब f of x वाले फंक्शन में x के प्लेस पे e पुट कर दो। सो log e अपॉन e इट विल बी लाइक दिस। log e की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन e, सो यू विल गेट 1 अपॉन e। दैट्स इट। ये इसकी, हाँ नहीं, ये तो क्रिटिकल पॉइंट निकाला है। ठीक है, ओके। शैवी नैना समझ में आया क्या? यस सर। ओके ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी लिए ना, ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी वाले बुक वाले हैं। एक्चुअली उसमें ना टोटल 8 to 10 क्वेश्चंस बस लिया है, और उसमें मैक्सिमा मिनिमा पूरा कंप्लीट कर दिया, जो उसमें 3-4 एक्सरसाइजेस में। सो पहले मैं इसीलिए उसके क्वेश्चंस आप लोगों को बता दे रहा था, फिर उसके बाद हम एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, दिस क्वेश्चन f of x is equal to this. Now find f dash of x। क्या होगा, हाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। f of x is equal to 1 minus x square e raised to power x. So f dash of x will be first function सेकेंड का डेरिवेटिव। सो e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है, e रेस टू पावर x प्लस सेकेंड फंक्शन e रेस टू पावर x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x। ओके, सो e रेस टू पावर x कॉमन निकाल लो। सो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x, यही बचेगा। यहां तक क्लियर हुआ? फर्दर यहां पर इसको फैक्टराइज कर लो के अंदर वाली टर्म को। अच्छा, फैक्टराइज करने के पहले माइनस कॉमन निकाल लेते, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लेंगे, सो ई रेस टू पावर एक्स, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1। चेक करो ऐसा ही होगा। हम्म, अभी ये फैक्टराइज होगा क्या, आई थिंक नहीं होगा क्या फैक्टराइज, ये नहीं होगा। नहीं होगा आई थिंक।
नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है तो ठीक है, यहीं पर छोड़ देते, x की वैल्यू निकालते हैं। अब क्या करते हैं, f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करते हैं ना, f dash of x is equal to 0. So minus of e raised to power x, x square plus 2x minus 1 is equal to क्या पुट करेंगे, 0. क्लियर, इज इक्वल टू 0. अब इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो इसमें दो कंडीशन होगी, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0. सो इट मींस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड वाले पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट इक्वल टू 0 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा आपको पता है, e टू द पावर x की वैल्यू 0 नहीं होती है. ठीक है, सो इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे. ये कौन सी इक्वेशन है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक Sir, इक्वेशन, but we can directly take minus e to the power x in division with 0, no? So it will be 0 directly. yes, no problem with that, you can take that also. Okay, so further, to solve this quadratic equation we have to apply quadratic formula. Quadratic formula is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So apply this formula. So when you apply this formula, it will be x is equal to minus b, so it is minus 2 plus minus under root b square. So b square means 2 square, 2 square is 4, minus 4ac. So minus 4 into a is 1, c is also 1, divided by 2a. Okay, sorry, c is minus 1, c is minus 1, yes. So you'll get x is equal to minus 2 plus minus under root, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 divided by 2. Okay, so you'll get x is equal to minus 2 plus minus 2 root 2 divided by 2. Okay, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, और सिंप्लीफाई करेंगे ना, मैं कर रहा हूं अभी. यहां तक क्लियर है ना? फर्दर x is equal to, we can take 2 common from numerator, so it will be minus 1 plus minus root 2 divided by 2. Now we can cancel this 2 and this 2. So we'll get x is equal to minus 1 plus minus root 2. So we are getting two values of x. First one is x is equal to minus 1 minus root 2, and second one is x is equal to minus 1 plus root 2. Okay, ये चीज क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ना एक और मैं थोड़ा सा छोटा सा काम इसमें कर लेता हूं. आपको रूट 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए. रूट 2 की वैल्यू याद है? नहीं, ये याद होना चाहिए एक्चुअली. 1.4. yes, 1.414 एक्चुअली ये होता है. सो व्हेन वी पुट x रूट 2 इज इक्वल टू 1.41, सो द टू वैल्यूज ऑफ x विल बी लाइक दिस. ये क्या हो जाएगा, -1 एंड -1.441, सो इट विल बी -2.41. ओके, एंड दिस वैल्यू विल बी x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस 1.41, सो इट विल बी 0.41. Okay, so these two values are critical values of x. Okay, ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना जरूरी है, बिकॉज आपको इंटरवल्स में पुट करना पड़ता है ना, तो आपको इंटरवल में क्या वैल्यू कंसीडर करनी है वो पता होना चाहिए. ओके, हाँ, इसमें 3 इंटरवल मिले. फर्स्ट इंटरवल इज फ्रॉम -∞ टू -2.41. Second interval is -2.41 to 0.41. Third interval is 0.41 to infinity. Okay, now for the first interval, check whether the derivative is positive or negative. Consider any value which belongs to this interval. Let us consider हाँ, इसमें से कोई भी एक वैल्यू कंसीडर करो फर्स्ट इंटरवल की. क्या कंसीडर कर रहे हो? -100 कंसीडर कर लेंगे. -100 कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. देखो, -100 लेंगे तो ये क्या आएगा, -100 का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा 10,000. -100 ये क्या हो जाएगा, -200, ये -1. क्लियर? सो ओवरऑल दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट विल बी पॉजिटिव, और बाहर में क्या लगा हुआ है, नेगेटिव. सो इस इंटरवल में ये क्या आएगा, f dash of x नेगेटिव. ये नेगेटिव कैसे आया, ये समझ में आया शैवी और नैना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now for the next interval, for this interval, which value you will consider for this interval? Second interval से कौन सी वैल्यू कंसीडर करना चाहिए, 0.
Yes, correct. So 0 consider करेंगे. So when we put x is equal to 0, e raised to power 0 is 1. E raised to any number to the power 0 is 1. So it is 1, it is 0, it is 0, it is minus 1. So minus 1, that is plus 1. So positive. So we are getting positive for this interval. Now for the next interval, that is from 0.14 to 41 to infinity. Now consider x is equal to 100. Again, when you will consider x is equal to 100, so this complete part will be positive, and in the outside it is negative. So the overall it will be negative. So for the next interval, it is negative. सर पॉजिटिव होगा ना लास्ट वाला? नेगेटिव होगा ना, है ना? अगर x 100 रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ओवरऑल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर तो माइनस साइन है ना. यस सर. ठीक है. सो नेगेटिव. अब देखो, चेक करो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू क्या है, -2.41, और विच इज एग्जैक्टली दिस -√2 -1 is point of minima, is point of minima. ओके. मिनिमम वैल्यू भी निकालना पड़ेगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन. निकाल लोगे ना तुम लोग? ठीक है. And this point x is equal to 0.41, that is √2 - 1, is point of maxima, is point of maxima. ओके. हाँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन. हम्म. हम्म. एक मिनट ना, मैं तेरे क्वेश्चन पे आता हूँ. पहले मैं इसका सॉल्यूशन का आंसर चेक कर लूं. ये कौन सा क्वेश्चन हमने बनाया, सॉल्व किया है? फर्स्ट का थर्ड नहीं भेजा है. x इज इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन सही तो सिलेक्ट किया था ना. बुक मैंने भेजा है ग्रुप में. हाँ. हम्म. अब अभी वो बच्चे वो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी. किसके बोल रहे हो, इंक्रीजिंग डिक्रीज? अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के. ठीक है. बता देता हूँ ना. हाँ कृष्णा, क्या पूछ रहा था, बता दो. -e⁻x है और x की वैल्यू अगर इवन है, तो ये ऐसा नहीं है ना, -e⁻x ऐसा नहीं है ना. माइनस अलग है और e⁻x अलग है. समझ रहे हैं ना? हम्म. ओके. सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग इसको ट्राई करके देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बन गया. f of x is equal to x² - 7x + 6. क्या आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट? 7/2. और मैक्सिमा है या मिनिमा है? कितनी आ रही है?
minus 25/4. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, इसके अपॉन में भी है, सॉरी। बहुत सिंपल हो गया ना वो क्वेश्चन। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली फोर्थ पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 होल अपॉन x माइनस 10। उसको करेक्ट कर लेना और फिर से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नैना एंड शेवी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो अभी मैंने लिखा है। यस सर। फैक्टराइज करना पड़ेगा बट उसको। एफ डैश ऑफ एक्स को फैक्टराइज किया। हम्म 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 देखो, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। मैं सॉल्व करूं? ओके, चेक करो। एफ डैश ऑफ एक्स जब निकालोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। सो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर
डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1. ओके, सो फर्दर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर ये आ जाएगा x माइनस 10 का होल स्क्वायर. न्यूमरेटर वाली टर्म्स क्या होंगी चेक करना एक बार. न्यूमरेटर वाली टर्म्स, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, सो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस सर 7x. हाँ बोलो. -10 आएगा ना वहाँ पे, हाँ एफ डैश एक्स जहाँ पे आप लिखो x Sorry. -10 आएगा. हाँ, yes, it will be x minus 10. X minus 10. So it will be 2x square minus 20x, 2x square minus 20x minus 7x plus 70. ओके, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6. यहां तक क्लियर है. फर्दर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, ये प्लस 7x माइनस 7x वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी. यहां पर क्या बचेगा माइनस 20x, 70 माइनस 6, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी प्लस 64 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 होल स्क्वायर. ये डेरिवेटिव निकालने में अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या तुम लोगों को? So further it will be x minus 10 whole square. न्यूमरेटर में मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना पड़ेगा. किस में स्प्लिट होगा एक बार चेक करो. एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64. सो किस में स्प्लिट होगा 16 4 64 होता है ना, तो माइनस 16x माइनस 4x में स्प्लिट होगा. फिर फैक्टराइज करो फर्दर, क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स निकालो. डिनोमिनेटर का तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है ना वो तो. हाँ एक सेकेंड, ये तो न्यूमरेटर हो गया ना फैक्टराइज x माइनस 4 एक्स माइनस 16 में. यहां तक चेक करो x माइनस 4 आ गया और ये क्या आ गया x माइनस 16 आ गया. यहां तक क्लियर, f डैश ऑफ x आ गया सबका. अब उसके बाद f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू क्या करेंगे 0. तो एक मिनट इसके बाद यहां एक्सप्लेन करता हूं. f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 करोगे, सो यहां पर वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे x माइनस 4 into x minus 16 is equal to 0, so you'll get x is equal to 4 and 16. x की ये दो वैल्यू मिलेंगी and x minus 10 डिनोमिनेटर को भी equals to 0 करेंगे, so x minus 10 square is equal to 0 और x minus 10 is equal to 0, so you'll get x is equal to 10. तो ये तीन क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगी, एक तो 4, दूसरा 16 और थर्ड कौन सा हो गया 10. यहां तक आया सबका. हाँ. अब उसके, हाँ बोलो नैना कुछ डाउट. नो सर. Minus infinity to plus infinity. Now the critical points are 4, 10 and 16. So we got 3 different critical points. So how many intervals are there? Total 4 intervals. Minus infinity to 4, second interval is 4 to 10, third interval is 10 to 16, fourth interval is 16 to infinity. Okay. Now check the sign of f dash of x for the first interval. First interval is this minus infinity to 4. तो इस इंटरवल में साइन चेक करो. x की वैल्यू क्या कंसीडर कर सकते हैं 0. 0 कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव. सो साइन यहां पर मैं लिखते जा रहा हूं इस इंटरवल में पॉजिटिव. सेकेंड इंटरवल चेक करते 4 to 10. 4 to 10 वैल्यू कंसीडर करो कुछ भी. सपोज 6 कंसीडर कर लेते हैं. 6 कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट मींस नेगेटिव नेगेटिव. सो x इज इक्वल टू 4 क्या मिल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ओके, फिर उसके 10 के बाद देखते हैं. 10 के बाद 10 से 16 की वैल्यू कंसीडर करते हैं. 10 to 16 की वैल्यू
सपोज हम कंसीडर करते हैं 14, ठीक है, 14 कंसीडर करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब ओवरऑल क्या रहा है, नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू 10 पे क्या होगा, हाँ, ये 10 ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा ना ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, तो हम इसको कुछ भी नहीं कंसीडर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट 16 पे चेक करेंगे, 16 के बाद चेक करेंगे, मतलब सपोज हम पुट करते हैं इस इंटरवल की वैल्यू 100, तो 100 पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहा है, पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 16 जो है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर? समझ में आया सबको? ये एक बार एक्नॉलेज करो, है ना, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ओके, शैवी, नैना, क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 2x। एक्चुअली एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सुनो इधर ध्यान देना, ये जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया ना, सुनो पहले, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, हमारा ये सब जो आंसर आया ना, ये सब आंसर, देखो ये सारे वैल्यूज है, ये सब आंसर आए ना, जब मैंने बुक में उसके आंसर्स को चेक किया ना, तो वो आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीटली करेक्ट है। एक्चुअली वो जो एनसीईआरटी की पीडीएफ में जो तुम लोगों को शेयर किया हो ना, उसमें कई क्वेश्चंस गलत है, मैंने क्रॉस चेक किया, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन की प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, इसका क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, यहां पर स्क्वायर होना चाहिए, समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर फिर बुक का दिया है वो सही आएगा। तो क्वेश्चन ये अगर है तो आंसर हमने जो निकाला है वो सही है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बुक से मैच करोगे ना तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बुक में प्रिंटिंग एरर है, हमने जो सॉल्व किया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, आप लोग आराम से उसको वेरीफाई कर सकते हो। ओके, ठीक है, सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। जल्दी से देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा आया था। फिफ्थ क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1/2x, ये है एफ ऑफ एक्स। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, d बाय 2, यस। सो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये वाला भूल गए क्या? सो क्या होगा, -1 x टू द पावर -2, सो इट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर ये स्टेप? इसको भूल जाते हो बार बार, याद रखना। सो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, इसलिए देखो 2 into 1। ओके, सो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 1 अपॉन 2x स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, फर्दर यहीं पर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर -1। यहां तक क्लियर? फर्दर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर, न्यूमरेटर को यहीं पर फैक्टराइज कर सकते हैं तो कर लेते हैं। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको, यस, तो इसको 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। फर्दर a प्लस बी, a माइनस बी, आइडेंटिटी अप्लाई होगी, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या हो गया, 2x स्क्वायर। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर है? यस, एक्नॉलेज करो एक बार। नैना, शैवी, Yes. क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स मिलने के बाद हम उसको इक्वल टू 0 करते हैं। सो एफ डैश ऑफ एक्स को इज इक्वल टू 0 करो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहां पर ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये पूरा टर्म उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इक्वेट करते हैं 0। हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा, उसको भी इक्वल टू 0 कर दो।
एक तो एक आएगा 1/2, दूसरा आएगा -1/2, और तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0, जब डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करोगे। तो यहां पर हमको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन में ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया +इन्फिनिटी। सबसे पहले आएगा -हाफ, फिर आएगा 0, देन आएगा +हाफ। तो इंटरवल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इंटरवल्स क्या हो गए, -इन्फिनिटी टू -हाफ, नेक्स्ट इंटरवल इज -हाफ टू 0, नेक्स्ट इंटरवल इज 0 टू +हाफ, नेक्स्ट इंटरवल इज हाफ टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब फर्स्ट इंटरवल पे साइन चेक करो। फर्स्ट इंटरवल वैल्यू क्या लेंगे, सपोज -100 ले लेते हैं। ठीक है, बड़ी वैल्यू -100। तो -100 पुट करेंगे तो चेक करके बताओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अगर उसमें कंफ्यूजन जा रहा है तो यहां पर पुट करके चेक कर लो, यहां पर एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पर पुट करने पे ना, -100 पुट करोगे तो देखो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। डिनोमिनेटर विल बी पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर है। सो यहां पर इस इंटरवल पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, Sir, side by side we will include the denominator also, or we will like not solve for denominator. like here we have taken x is equal to 0 when we equate denominator is equal to 0. No, sir, when we are putting the value of 100, Yes, so yes, we yes, will put in both numerator and denominator also. yes, absolutely, in numerator and denominator both. So that complete part will give you the sign of f dash of x. We cannot ignore the denominator. Okay, so for the first interval it is positive. Now for the next interval, -half to 0. So -half is -0.5. So take -0.1. -0.1 will lie in this interval. चेक कर लेते हैं। -0.1 अगर पुट करेंगे, नहीं मेरे ख्याल से कुछ गलत कर रहे हो तुम अनुश्री। x इज इक्वल टू -0.1 अगर कंसीडर करेंगे तो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, इस पे चेक करना, इस पे चेक करना ज्यादा आसान होगा। -0.1 स्क्वायर -1 ऐसे ही होगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे ज्यादा हमको फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो तो पॉजिटिव होने वाला है बिकॉज माइनस का स्क्वायर। -0.1 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ, -0.1 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं, हाँ 0.01 करेक्ट। हाँ, तो एक्चुअली ये -1/10 हुआ ना, और उसका स्क्वायर क्या होगा, +1/100 हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली 0.01। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0.01 -1 डिवाइडेड बाय ये जो भी है पॉजिटिव, उसको छोड़ दो, मतलब ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। समझ में आया ना ये चीज, ठीक है, सबको क्लियर। सो फॉर दिस इंटरवल इट इज नेगेटिव। सो ये जो पॉइंट मिला 1/2, x इज इक्वल टू -1/2, इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, नैना शैवी क्लियर ये वाला फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. Yes, sir, understood. Okay, now for the next interval 0 to 1/2, again you can take the value 0.1 here also. So again you'll get negative, so it is again negative. So here it is point of inflection, we will not consider 0, it is neither minima nor maximum. Now take any value from this interval 1 to infinity, half to infinity, it is positive. पॉजिटिव मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा। सो x इज इक्वल टू हाफ इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर। अच्छा, इसमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो आप लोग बताओ, हो जाएगा ना, इसमें पुट करना पड़ेगा 1/2 और -1/2। ओके, ओके, 0, एक मिनट ना चेक कर लेता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया ना, नहीं 2 और -2 आएगी।
कर लेना, उसको चेक कर लेना। हाँ, अभी अभी देखो इधर पे ना, अभी कहाँ हुआ है? अच्छा 11 बज गया क्या? ओके ठीक है, मैं ध्यान में नहीं था। ठीक है चलो अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं फिर अभी। लेकिन ना इस टॉपिक पे हम लोग 2-3 क्लास और करेंगे, मतलब ये समझ लो आज हो गया, आज कौन सा था, फ्राइडे, कल सैटरडे भी और परसों संडे भी। नहीं नहीं, कल रेगुलर टाइम पे ही रखते हैं 7 to 8। ठीक है। तो कल और परसों 2 दिन और करेंगे मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन फिर भी पता है मतलब क्वेश्चंस इतने हैं ना कि मैं पूरे क्लास में नहीं करवा सकता। आपको घर में करना पड़ेगा और आपको सेलेक्ट करके आने पड़ेंगे क्वेश्चंस, जो आपसे नहीं बन रहे वो मुझसे पूछने पड़ेंगे। ठीक है। ओके सो शेवी नैना कुछ डाउट है तो पूछ सकते